السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان کا جو، الذی وہ ہے جس میں انزلہ اتاری گئی، فیہ اس میں القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والبینات اور واضح دلائل، من الہدا ہدایت کے، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ فمن پر جو کوئی شاہدہ موجود ہو، منکم الشہرہ تم میں مہینے میں، فلیصمہ پس چاہیے ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کانا اور جو کوئی ہو، مریضن بیمار، او علی سفرن یا سفر پر، فعدۃ پس گنتی پوری کرے، من ایامن دنوں سے، اخر بعد والے یا دوسرے۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتا، بکم العسر تمہارے ساتھ تنگی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ اوپر ما ہداکم جو ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ جی یہ ہماری آج کی آیت ہے۔ پچھلے سبق کے اندر بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، لیکن چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ سے نہ دہرا سکے تھے، نہ اس کی تفسیر دیکھ سکے تھے، اس لیے دوبارہ سے آج یہ والی آیت کو پڑھا گیا تاکہ اس کو صحیح سے سمجھا جا سکے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا جا سکے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس ماہ میں قرآن مجید اتارا گیا، اور اس ماہ کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، پھر بتدریج 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جاتا رہا۔ اس آیت سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ خاص رشتہ اور تعلق استوار ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور قیام کرنا چاہیے، یعنی
इसी चीज को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में हर रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे। सहाबा इकराम और दूसरे सलफ सालिहीन के अमल से भी रमजान में कुरान से खसूसी लगाव साबित है। बहुत सी हदीस में माह रमजान की रातों में क़याम की फजीलत आई है, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नियत के साथ रमजान का क़याम किया, इसके पहले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। इसी तरह अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की 23वीं, 25वीं और 27वीं रात जमात के साथ क़याम करवाया। इसी तरह अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु ने आयशा सद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज किस तरह थी, तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान होता या गैर रमजान होता 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम लोगों को एक इमाम पर जमा कर दिया, यानी जमात के साथ। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा से क़यामुल लैल जो कि रमजान के अंदर करवाते, उन्होंने इमाम मुकर्रर कर दिए, जैसा कि उबई बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को हुक्म दिया कि वो लोगों को 11 रकत क़याम करवाएं। बाद में दुनिया ने जो 20 रकत पढ़ा करते हैं, उन्होंने एक बात ये बोली कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जो है वो 20 रकात पढ़ी जाती थी, जबकि ऐसा नहीं है। 20 रकत पढ़ना या इसका हुक्म देना सही सनद के साथ ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना उमर रजी अल्लाह अन्हु से साबित है। हाँ, बाज रवायात में उमर रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में बाज लोगों से 20 रकत पढ़ने का जिक्र आया है। मोता की सही हदीस से मालूम होता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उबई बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा को खास तौर पर 11 रकत का हुक्म इन्हीं लोगों के इस अमल को खत्म करने के लिए दिया था। अब इधर बात की हमने कि सही सनद से ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं, ना कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है, ना प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि उन्होंने 20 रकत जो है वो क़यामुल लैल की रमजान में पढ़ी, बल्कि कितनी साबित हैं 11। अब इधर बात जो सनद की गई है, तो सनद को एक समझ लें। सनद किस चीज को कहते हैं? मसलन सनद इस चीज को कहा जाएगा, मैं कोई बात करता हूं ना, तो मैं कहता हूं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो अब ये साबित होना चाहिए कि मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज का रब्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बन रहा है सारा या नहीं बन रहा, और इस रब्त बनने को सनद बोला जाता है। और इसके ऊपर बहुत मुहद्दिसीन ने मेहनत की, उलमा ने बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद फिर ये था भी किस तरह? ये था इस तरह क्योंकि दीन इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया, तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जो कि सही सनद के साथ साबित नहीं होती, उसको आज भी दीन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए जो कोई अपना कोई इंफरादी अमल करता है वो करता रहे, लेकिन अगर वो ये बात करेगा ना कि ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकत तरावी जो है, 20 रकत क़यामुल लैल जो है रमजान में ये शुरू करवाई थी, तो फिर उसको चाहिए कि वो जो बात कर रहा है वो बात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। तो जब फिर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये चीज
ان کے بحاف کے اوپر نہیں کی جا سکتی. اپنے طور پہ آپ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. یعنی ایک بندے نے بات بولی, بڑے عرصے بعد جا کے کوئی بندہ اس بندے کی بات کو کوٹ کرے گا تو یہ شرط ہے کہ درمیان میں اس کا ربط ہونا چاہیے, اور وہ ربط جو ہے وہ سند کہلاتا ہے. شہر رمضان الذی, مہینہ رمضان کا وہ ہے جو جس میں انزل نازل کیا گیا فیہ, اس کے اندر قرآن کو, قرآن ہے کیا, ہدن ہدایت ہے, للناسی لوگوں کے لیے, والبینات اور واضح دلائل, من الہدا ہدایت کے, والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی. یعنی قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی موجود ہیں. ہدایت تو ایک عام سی ہوتی ہے اور ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جس کے ساتھ دلیل بھی ہو. سو اس میں صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس کے دلائل بھی موجود ہیں. اس کتاب کے اندر, اس قرآن کے اندر نہ صرف ہدایت ہے بلکہ ہدایت کے دلائل بھی موجود ہیں. فمن, بس جو کوئی شاہدہ حاضر ہو, منکم الشہرہ, تم میں سے اس مہینہ میں, فلیصمہ, بس چاہیے ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. یعنی اس مہینہ کا چاند جب طلوع ہوئے تو چاند طلوع ہونے کے بعد جو گھر میں موجود ہو وہ ضرور روزہ رکھے, وہ ضرور روزہ رکھے جس نے یہ مہینے کو پا لیا, اور مہینے کو پا لینے کے بعد اپنے گھر میں اطمینان سے موجود ہے تو وہ اس کا روزہ ضرور رکھے. ومن کانا, اور جو ہو مریضاً, مریض, او علی سفرن, یا سفر پر. یعنی پھر اس کے لیے چھوٹ ہے, رخصت ہے. کیا رخصت ہے کہ پھر جو کوئی مریض ہو یا کوئی سفر پہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا بالکل جان چھوٹ جائے گی, اب وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, فائدتن, پس گنتی پوری کرے گا, من ایام اخر, دوسرے دنوں سے. یعنی بعد والے دنوں میں پھر جب اس کو ٹھیک ہو جائے یا جب وہ سفر سے واپس آ جائے تو پھر وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد جو ہے اس کو وہ پورا کرے گا اور وہ روزے رکھ لے گا. اور یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے دی کیوں ہے؟ یرید اللہ, چاہتا ہے اللہ, بکم الیسر, تمہارے ساتھ آسانی کو, ولا یرید, اور نہیں وہ چاہتا, بکم العسر, تمہارے ساتھ تنگی کو. اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچے نا, چھوٹا سا نقشہ اس طرح بھی ہے, مسافر ہے, صبح گھر سے نکلا, بہت گرمی کے ایام ہیں, 3 سے بھی پہلے جو ہے وہ روزہ بند ہو جاتا ہے اور بہت لمبا روزہ ہے, جا کے 7:30 بجے جو ہے وہ روزہ افطار ہوتا ہے, اور درمیان میں سفر میں ہے, اتنی گرمی ہے, اوپر سے اس وقت ویسے بھی ہیٹ سٹروک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو اس کو برداشت کرنی پڑیں گی سارا دن میں. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اور یہ کیا کیوں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم پوری کرو گنتی, یعنی چھوڑ نہیں دو, پوری کرو. پھر پوری کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی, اللہ اوپر, ما ہداکم, جو ہدایت دی تم کو, وَلَعَلَّكُمْ, اور شاید کہ تم تشکرون, شکر کرو. آیت کے اس ٹکڑا کے اندر علماء نے روزوں کی تکمیل کے بعد, یعنی جب روزے پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام کیا, جس کے اہتمام کے لیے, عید الفطر کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی تکبیرات کا اہتمام کیا. تکبیرات کے اہتمام کا نتیجہ اور مسائل علماء نے آیت کے اس حصہ سے جو ہے وہ نقل کیا, جس کی عملی تفسیر جو ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہیں, اور جن پہ پھر عمل پیرا ہو کے
ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते हुए और आते हुए तकबीरात का एहतमाम किया जाता है। तो ये हमारी आज की 185 आयत जो है वो मुकम्मल हुई। अब हम अपना दूसरे वाला सबक को देखते हैं। और आज तादाद भी थोड़ी सी जो है वो कम लग रही है। एक टास्क दिया था, सबक याद करने के लिए दिया था, हरूफ शमसिया याद करने थे। हरूफ शमसिया कितने हैं जी? ता और सा 2 ये हो गए, दाल जाल 2 ये हो गए, 4 रा जा 2 ये हो गए, 6 सीन शीन 2 ये हो गए, 8 स्वाद स्वाद 2 ये हो गए, 10 त्वा ज्वा 2 ये हो गए, 12 लाम और नून 14। ये 14 हरूफ शमसिया। और हरूफ शमसिया याद हमने क्यों करने थे? ताकि हमें पता चले कि जब इसके ऊपर अलिफ लाम आता है तो अलिफ लाम का एक्शन इसके ऊपर क्या होता है, अमल इसके ऊपर क्या करता है। आज हम इसम की बुनियादी इकसाम देखेंगे। इसम की 3 बुनियादी इकसाम हैं जी। एक है मस्दर, एक है मुश्तक, एक है जामिद। मस्दर, पहली किस्म जो मस्दर है, मस्दर वो इसम जो खुद किसी लफ्ज से नहीं बनता मगर इससे आगे बहुत से लफ्ज बनते हैं, यह मस्दर कहलाता है। मस्दर को किसी लफ्ज का बुनियादी मादा भी कह सकते हैं, जैसे ऐन लाम मीम मस्दर मादा है, इसी से आलिमुन इल्म वाला, इसी से मालूमुन जाना हुआ वगैरह है। यानी मस्दर जो है ऐसा इसम है जो किसी से नहीं बनता मगर इससे बहुत से लफ्ज आगे बनते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है जी मुश्तक। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बनता है, जैसे ऊपर मिसाल में हमने पढ़ा आलिमुन या मालूमुन। इसकी भी आगे फिर 3 किस्में हैं। एक किस्म जो है इसम सिफ्त है, एक इसम ज़र्फ है और एक इसम आला है। आज हम इन्हीं पे बहस करते हैं, एक और भी ऐड कर लेंगे। पहली बात हमें क्या पता चली कि मस्दर उस इसम को कहते हैं जो किसी लफ्ज से नहीं बनता लेकिन इससे बहुत से लफ्ज बनते हैं। आसान अगर हम करें, आसान इतना ही है कि मस्दर किसी से नहीं बना, मस्दर से अल्फाज बने हैं। ठीक हो गया, यानी ये सबका मादा हो गया। दूसरा है, अब जो अल्फाज बने हैं उनको क्या बोलेंगे? जो अल्फाज बने हैं वो मुश्तक होंगे। वो क्या होंगे? मुश्तक। जो मस्दर से अल्फाज बने हैं वो इसम क्या होंगे? मुश्तक होंगे। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बनता है। और इन दोनों के लिए एक ही मिसाल हम देखते हैं, जैसे इल्म से आलिमुन मालूमुन। इसी तरह ये इल्म जो था ऐन लाम मीम ये मादा हो गया और इससे बनने वाला आलिमुन और मालूमुन जो है ये मुश्तक हो गया। अब मुश्तक की आगे फिर 3 इकसाम हैं। नंबर 1 इसमें सिफ्त, नंबर 2 इसम ज़र्फ, नंबर 3 इसम आला। इसम सिफ्त क्या है? इसम सिफ्त ऐसा इसम है जो किसी जात की सिफ्त, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसको जाहिर करे। इसम ऐसा इसम सिफ्त कहलाएगा जिसमें किसी जात की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए। जैसे मिसाल में हम देखते हैं जी, फातिर समावाती वल अर्श, आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला। अब इसमें फातिरी जो है, यहां फातिरी सिफ्त के माने दे रहा है। यानी सिफ्त क्या हुआ? इसमें सिफ्त ऐसा इसम हो गया जिसके अंदर किसी जात की
सिफ्त बयान की जाए, वो सिफ्त अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब इसमें सिफ्त की आगे फिर से 5 किस्में हैं। इसम फाइल है, इसम माफूल है, इसम तफजील है, इसम मुबालगा है, सिफ्त मुशब्बा है। हम इससे आगे नहीं जाते क्योंकि पीछे वाला भी भूल जाएगा, लेकिन चूंकि रोजाना की बुनियाद पे हमें दोहराई करेंगे तो याद रहेगा, अगर दोहराई नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो वापस हम अपने दोहराई वाले चार्ट पे जाते हैं और इस सारे को दोहरा लेते हैं। मुंह से निकली हुई कोई भी आवाज जो है वो क्या कहलाती है? लफ्ज कहलाती है। अब लफ्ज की 2 किस्में हैं, एक ऐसा लफ्ज है जिसका माना है और एक ऐसा लफ्ज है जिसका कोई माना नहीं है। अब जिसका माना है उसकी भी आगे 2 किस्में हैं, एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद अकेले को कहते हैं, मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी है। फिर मुफरद की भी आगे 3 किस्में हैं, एक है इसम, फेल और हरफ। और हमने फिर इसम की बात शुरू की तो इसम की फिर आगे कितनी किस्में हैं? इसम की बुनियादी 3 किस्में हैं। इसम की बुनियादी 3 किस्में हैं, एक है मस्दर है, एक है मुश्तक है और एक है जामिद है। फिर हमने मस्दर पढ़ा, मस्दर के बाद मुश्तक पढ़ा, मुश्तक के बाद फिर मुश्तक की आगे 3 और किस्में हैं। मुश्तक की आगे 3 और किस्में हैं, इसमें सिफ्त है, इसमें ज़र्फ है और इसमें आला है। फिर उसमें हमने इसमें सिफ्त पढ़ा, तो इसमें सिफ्त की आगे 5 और किस्में हैं, इसम फाइल है, इसम मौफूल है, इसम तफजील है, इसम मुबालगा और इसी तरह सिफ्ते मुशब्बा। यानी कि ये चार्ट से आप अपनी दोहराई भी कर सकते हैं और साथ साथ हम इसको देखते भी रहेंगे। तो किसी का कोई सवाल है कर लें, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। ठीक है जी, हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं और आइंदा से क्लास इंशाल्लाह इसी टाइम हुआ करेगी। और एक बाकी अपने दोस्तों और साथियों को भी बता दें और थोड़ी सी फिर से तरगीब देने की जरूरत है, तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है दोबारा से, तो कोशिश करें कि साथी साथ मिलें, ताकि फिर होता यह है कि बार बार दोहराई तो नहीं हो सकती, तो इस चीज को साथ अस्सलाम वालेकुम लेके चलना चाहिए। इस किताब का नाम मिसबाहुल कुरान है, जिससे ये ग्रामर पढ़े। ये मैं दोबारा से जो है ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये मिसबाहुल कुरान नहीं है इस किताब का नाम। ये अगर किसी के घर में मानिउल कुरान मौजूद है तो मानिउल कुरान के या शुरू में या आखिर के अंदर ये मौजूद हैं ग्रामर। ये ग्रामर है जी, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने जो है ये लिखी हुई है। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का जो तर्जुमा है, उस तर्जुमा वाले कुरान में या तो आखिर में आपको मिल जाएंगी या उसके शुरू में मिल जाएंगी। मानिउल कुरान है उन्होंने जी है, मानिउल कुरान उसमें है। हाँ, बस ये वही है, उधर से ही हमने ये 36 पेज निकाल के अपने चुने हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर है और आसान है। बाकी जितनी भी हैं मिसबाहुल कुरान, मिफ्ताहुल कुरान और भी जितनी भी नहव और सर्फ की किताबें हैं वो लंबी लंबी और मुश्किल मुश्किल है। ये जरा छोटी और आसान है, इसलिए इसको चुना था। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।